Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in these episodes, we talk to emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. And today, friends, we have got a very interesting company which operates in a very niche space. The company's name is HM Electromech Limited, and we have the privilege of having the top management team. We have Mr. Deepak Pandya, who's the promoter and managing director of the company. दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको थोड़ा सा टाइम हमारे से ये बात करने के लिए। और महेंद्र पटेल जी थैंक यू जो होल टाइम डायरेक्टर है, ही इज ऑल्सो देयर विद अस। महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो सर, थैंक यू सर, वेलकम। वेस्टिंग टाइम सर, मैं पहला सवाल जो दीपक जी आपसे मैं पूछूंगा, ये हमारी कंपनी का मेन बिजनेस क्या है वो बताइए। बिजनेस मॉडल क्या है, हम एक्चुअली किस प्रोडक्ट को केटर करते हैं, और सर हम डोमेस्टिक मार्केट में हमारे क्या पोजीशन है, हमारी पोजीशनिंग क्या है, और ये बिजनेस हमने कैसे शुरू किया है। क्या ये आपका पहला फर्स्ट जनरेशन धंधा है जो आप ही ने शुरू किया क्या, या वेदर ये आपके पिताजी के टाइम से आ गया उसके बाद आपने कंटिन्यू किया, सर इसके बारे में बताइए। Actually, our company is around 22-year-old. Originally, it was partnership firm between myself and Mahindra Patel. उसके बाद 2018 में हमने उसको लिमिटेड कंपनी कर दिया है। हमारा कोर कॉम्पिटेंस जो है वो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में है। ओके। उसमें वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर दोनों। उसमें क्या होता है सर कि अपने हर एक के घर में जो पानी आता है, तो वो कॉरपोरेशन के थ्रू आता है या कोई भी जो थ्रू आता है, तो वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो रहता है, पंप्स, मोटर्स, कंट्रोल पैनल्स, ट्रांसफार्मर्स, तो उसके हर एक के प्रोजेक्ट रहते हैं। सपोज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, एमसीजीएम है मुंबई का, या फिर बड़ौदा, राजकोट, सूरत, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं टेंडर में, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में। उसमें पार्टिसिपेट करके हम ये जैसा आपने बोला, ये निश मार्केट है। इट इज नॉट लाइक एन रूटीन कॉन्ट्रैक्ट। इट इज हाईली what we call technical projects, because it involves rotating parts plus electrical parts. ओके। So these these pumps rotates 1450 revolution per minute. ओके। So you can understand that how many lakhs of rotation it goes through during its lifetime. ओके। So it's highly technical job. We are working with AMC and other corporations. Plus our main client is Gujarat Water Supply and Sewerage Board. ओके। ओके। This this water supply board caters to entire Gujarat's Nagarpalika and villages ओके। for drinking water. ओके। ठीक Plus, है। we are working with GWIL, which is a subsidiary company of GWSSB, where we are transmitting bulk water, raw water, which is from canal or river, and then transmit it to the end of the remote places of Gujarat, like Pakistan border, Porbandar, Junagadh, Jamnagar, at the end of the Gujarat border. ओके। Everywhere this water reaches their remote places, it reaches, and then respective corporations take that water and treat it, and then make it potable drinking water, ठीक and है। then they deliver it to respective uh, nagarpalika, then villages. ठीक है। This is the basic model of our uh, project. ओके। Plus, नहीं, ठीक है, same way इनफैक्ट we are working in corporation also. ठीक है। Same नहीं, strategy. दीपक जी, अभी आई वांट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। मेरे को एक बात बताइए कि सर सारे प्रोजेक्ट्स आप ईपीसी प्रोजेक्ट से ही कंप्लीट करते हैं, यानी पूरा प्रोजेक्ट आता है उसको आप ईपीसी के माध्यम से ही एग्जीक्यूट करते हो, ताकि टेंडर Yes, आते हैं, yes, आप yes, yes. ईपीसी प्रोजेक्ट करते हो, एंड देन इट इज इम्प्लीमेंटेड लाइक अ ईपीसी प्रोजेक्ट, करेक्ट? It is like Right. our project start from the design stage. ओके। Design, supply, installation, testing, commissioning, और and ऑपरेशन maintenance. 5 or 10 years of operation and maintenance for 365 days without any interruption. ओके। तो नॉर्मली So दीपक जी, there ओएनएम is का जो बिजनेस होता है वो नॉर्मली ओएनएम का कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों तक होता है, यानी वंस यू कंप्लीट द ईपीसी प्रोजेक्ट,
O&M कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कितने टाइम तक चलती है नॉर्मली? 5 से 10 साल, अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज रिटन इन टेंडर एग्रीमेंट। ओके ओके, समझ गए। और हमारा जो राइट सर। मेन फोकस है दीपक जी, इट इज बेसिकली ऑन द वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट्स, राइट? वी आर फोकसिंग ऑन वाटर एंड सीवरेज राइट, प्रोजेक्ट। एंड रिसेंटली वी हैव एंटर्ड इनटू ईपीसी आल्सो। ओके ओके, वी हैव, पार्डन सर। आई सेड वाटर एंड सीवरेज ई मेन सेक्टर है जहां पे हम ये ईपीसी का काम करते हैं, बराबर? यस, our major revenue is from water and wastewater. I ओके mean drainage ओके project. ओके। और हाँ सर ज्योग्राफिकली मेरे को बताइएगा दीपक जी कि विद इन गुजरात ही हमारा ज्यादातर बिजनेस आता है या आउटसाइड गुजरात भी हम थोड़ा बहुत काम करते हैं? हाउ आर वी स्प्रेड आउट पैन इंडिया, लाइक गुजरात के बाहर भी कुछ काम होता है या मेजरली गुजरात से ही yes. कनेक्टेड है? Our major is in 65-70% is in Gujarat. ओके Balance 30-35% is in Madhya Pradesh, Rajasthan, Chandigarh. These are the regions where we are working in this water supply segment. ओके। Recently we, हाँ, सर अभी कोई नए स्टेट में एंटर करने का कोई पॉसिबिलिटी है, कोई एफर्ट्स कंपनी कर रही है अपार्ट फ्रॉम गुजरात? गुजरात में तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बट एज यू सेड हाँ, मध्य प्रदेश है, कोई दूसरा स्टेट है, तो आर यू प्लानिंग टू इंक्रीज योर एक्सपोजर? क्योंकि सर आपका टेक्निकल yes, एक्सपर्टाइज तो ऑलरेडी अच्छा है, तो आर यू प्लानिंग टू हाँ, एंटर इनटू सम न्यू स्टेट्स फॉर Yes, सम yes, न्यू yes, टेंडर्स yes. आल्सो? We have already bidded for UP Jal Nigam, ओके Meerut city, Meerut ओके city. ओके So now we have started in, we are looking after Orissa also, ओके Chhattisgarh, Orissa, Maharashtra. Maharashtra. ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये दो तीन नए स्टेट्स भी आप प्लान कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम जो गुजरात Yes. आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है? सर नाउ मेरे को और नया बताइए। डिपार्टमेंट भी ट्राई कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। सर अभी एक ग्रेजुएट। बात बताइए कि सर नॉर्मली ये जो बिजनेस है ये नीश बिजनेस है, इसमें नॉट मेनी प्लेयर्स आर देयर। सर टेल मी वन थिंग, दैट नॉर्मली फॉर दीज ऑर्डर्स, फॉर दीज टेंडर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर्स कितना टाइम लगता है? नॉर्मली टेंडर बिड होता है, उसके बाद ऑर्डर आता है, उसके बाद कमीशनिंग होता है, तो नॉर्मली पहले तो बताइए टेंडर से ऑर्डर तक मिलने तक कितना टाइम लगता है? और ये ऑर्डर नॉर्मली कितने लंबे समय का होता है, साल भर का, 2 साल का? ये पूरा ईपीसी प्रोजेक्ट आप कितने समय में कंप्लीट करते हो? एक्चुअली जब बिड करते हैं और ऑर्डर मिलता है ना, दैट दैट वेरीज फ्रॉम 30 to 75 days. ओके ओके। Although they are taking validity for 180 days, but हाँ it gets within 2 to 3 months we get the order. ओके। और सर पूरा हाँ, कमिश्निंग के लिए कितना टाइम लगता है? ये ऑर्डर, अगर आपको कोई ऑर्डर मिल गया ईपीसी का, तो उसको कंप्लीट करने में मोटा मोटी कितना टाइम लगता है? उसमें सर ओनली इलेक्ट्रोमैकेनिकल है ना, तो इट इज 9 months. अच्छा ओके। और इफ इट इज EPC with piping, हाँ cross country pipeline or civil work is also involved, then it varies from 1 year to 2 year. ओके ओके। तो लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं मोटा मोटी, आई मीन जो आप बता रहे हैं कि Yes. इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है। Lot of approvals are also there. अच्छा Forest department, railway, रोड state रोड highway, हाँ national highway. So ओके। that requires lot of coordination with different state and central government बिल्कुल। department. So it तो सर अभी ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी दीपक जी बताइए, आप ये इंडस्ट्री में काफी समय से हो, मेरे को बताइए सर, ये वाटर और वेस्ट वाटर जो आप प्रोजेक्ट्स बता रहे हो सर, अपार्ट फ्रॉम गुजरात एंड अदर स्टेट्स, ओवरऑल सर व्हाट इज द साइज ऑफ द मार्केट? क्योंकि हम तो अभी ग्रोथ स्टेज में है, काफी ऑर्डर्स हमको मिल रहे हैं, बट अगले तीन हाँ, चार साल में हमको क्या लगता है कि मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है, ताकि हमारी कंपनी को भी फायदा होगा कि इस प्रोडक्ट के लिए जो yes. इलेक्ट्रो मैकेनिकल का जो आपका जो प्रोडक्ट है, इसमें आपको काफी हाँ, ग्रोथ मिलेगा, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। महेंद्र जी बताते हैं अभी ठीक है आपको। महेंद्र जी, सर आप। सर हाँ सर, पहले हमने जब काम किया था ना, आज से हम 10 साल 15 साल 20 साल पहले काम करते थे, तब छोटे काम थे। वो काम का रिट्रोफिट तो आ रहा है और नया भी आ रहा है, हाँ एनहेंसमेंट तो हो रहा है, नया भी हो रहा है। सब में ओके आज जो काम कर रहे हैं उसका एनहेंसमेंट भी आएगा, नया भी आएगा। ओके। ऐसे जो आज 5 साल पहले किया उसका एनहेंसमेंट भी आ रहा है, नया भी आ रहा है। और मोदी जी है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी निकाले, फंड भी डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो वैसे भी बिजनेस तो डे बाय डे बढ़ रहा है हमारा। 30 साल से हम ये बिजनेस में है, कभी हमने ऐसा स्लैक सीजन देखा नहीं है इतने टाइम में। हाँ बट मेरे को तो बताइए क्या सर रहता है इसमें सर?
इसमें टेंडरिंग जब होती है सर, टेंडरिंग में सर हाँ प्राइसिंग कैसे होती है? लाइक मान के चलिए कोई प्रोजेक्ट में कुछ कस्टमाइजेशन होता है, कुछ हाँ स्पेसिफिकेशंस बताए। होते हैं, तो सर हमारा जो प्राइसिंग है वो कैसे होता है? जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है उसका मतलब आप ज्यादा अच्छा प्राइस टेंडर करके आपको प्राइसिंग राइट मिलती राइट राइट। because we have our purchase power is more compared to our peers. है। हाँ। Plus, we have a very good technical team, and promoters are also having more than 30 years of experience. ओके So there we are having a head start compared to our competitors. ओके ओके और डिपार्टमेंट में सभी जगह पे हमारा इतना रिलेशन बन गया है अभी। जैसे एक पर्सन और एक जेन्युइन वर्क के लिए या क्वालिटी वर्क के लिए ओके टेंडर में कोई चीज नहीं होती, फिर भी हम क्वालिटी के लिए हम कर देते हैं। तो ओके क्वालिटी के लिए एक हमारा अच्छा ऐसा डिपार्टमेंट के साथ एक व्यू बन गया कि ये ओके पार्टी है तो हमें अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है इंजीनियरिंग। ओके। वो अच्छा If we are lowest in any tender, then department is also happy. हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी बताइए That's सर, करंटली हमारी ऑर्डर बुक क्या है? क्योंकि मैं आपका प्रोस्पेक्टस भी देख रहा था, तो सर व्हाट इज द करंट ऑर्डर बुक, जो व्हाट इज द स्टेटेड ऑर्डर बुक एज ऑन डेट? और दूसरी बात बताइए कि सर नॉर्मली क्या ये मान के चले कि ज्यादातर बिजनेस जो आता है वो गवर्नमेंट रिलेटेड ही बिजनेस है, इसमें प्राइवेट सेक्टर बिजनेस थोड़ा कम है? आई मीन कैन वी एज्यूम दिस फॉर योर कंपनी? उसमें क्या है सर कि हम दो टाइप के, वन इज डायरेक्ट बिडिंग एंड अनदर इज bidding to civil contractor, big civil contractors having a project range of 300 crore, 400 crores, where we are not getting qualified. But due to our core competence in pumping machinery, they are giving back to back entire project to electromechanical portion to us. ओके So we are getting orders two way. One is direct, another is indirect. But ओके। ultimately, in both the cases, it is government. अच्छा अच्छा, ओके ओके, नहीं ठीक है, समझ गया। सर हाँ, ऑर्डर बुक कितना है वो जरा बताइए। आई थिंक आई आस्क्ड फॉर द ऑर्डर बुक, करंटली ऑर्डर बुक की हाँ, हाँ. पोजीशन कितनी होगी? It's around 150 crores as on date. ओके Pending. Yes. ओके। और ये मोटा मोटी दीपक जी अगले साल तक कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी, यानी अगले 12 मंथ्स में ये 150 करोड़ विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू कंफर्टेबली, एटी ये मान परसेंट के चल सकते हैं ना? 80%। हाँ 80%। More than that, sir. More than that. ओके ओके। अच्छा सर अभी, Because lot of projects are on the verge of completion. ओके ठीक, And lot समझ of गया। we have also bidded also. सर अभी एक बात अच्छा और बताइए, सर। one हाँ thing which I wanted to understand from both of you is that, sir, you mentioned that you require a lot of technical expertise to be in this business. It is a difficult business. Tell me one thing, sir, financial बाजू में रखिए, लेकिन हम customers को कैसे value addition देते हैं? यानी why do we get repeat business or why do we get more contracts, from customers? थोड़ा बहुत, please correct me if I'm wrong. There might be a lot of repeat business from मैं the मैं existing आपको customers. एक्सप्लेन मैं सर आपको मेरे को एक्सप्लेन करता हूँ बताइए सर. कि हम ऐसा क्या अच्छा काम करते हैं कि जिससे कस्टमर्स हमसे खुश है? क्या हमारा एग्जीक्यूशन अच्छा राइट। है, सर्विस अच्छी है, क्या हमारा प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है? तो सर ऐसे कोई दो तीन चीजें बताइए जो फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो धंधे में बहुत अच्छी तरह से आप करते हैं, तो सर उसके बारे में बताइए। हाँ, उसमें क्या है सर कि हमारा में L1 is first thing we have to be L1 since being government contract. But हमने कुछ 15-20 सालों से एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि जो भी हमारी अप्रूव वेंडर लिस्ट है उसमें से टॉप 2 या टॉप 3 में से ही हम लेते हैं. बरोबर। हम विलो जर्मनी की कंपनी है विच इज नेक्स्ट टू किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड हाँ एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज कंसर्न. तो विलो के हम डीलर्स हैं. 15 साल से हम विलो के पंप यूज कर रहे हैं. तो व्हेन विलो पंप इज देयर, दैट इज वन अलग डिफरेंट लेवल बरोबर। rather than local players. ओके। Although their local players are also in approved vendor list of government, हाँ but we are using Velo pump only. ओके ओके As far as to drive the pumps, we have to use motor. Motor also we are using from ABB, Siemens, Crompton, ओके। or Marathon. हाँ No other make, local make. Although it is in approved vendor list. ओके Like that, there are high tension panel, low tension panels, valves. That also we are purchasing from top 2 or top 3 only. ओके ओके So that way we are confirming the department that we are going to give best quality product only. ओके There won't be any here and there in
capital product ठीक or है, project. ठीक है। So that तो कहने that का is मतलब है our कि कहने का मतलब है दीपक जी और महेंद्र जी कि बेसिकली आप सबसे बेस्ट वेंडर से काम करते हो एंड यू एंश्योर दैट हाँ टॉप क्वालिटी इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, सो दैट इज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई कस्टमर्स आर आल्सो हैप्पी एंड सर ये धंधा बढ़ रहा है। बट सर मेरे yes को yes. बताइए, इसमें नया कंपटीशन अगर आना चाहे दीपक जी, अगर मान के चलिए कोई नया कॉम्पिटिटर आता है, तो इज इट इजी फॉर एनीबॉडी टू कम एंड गिव यू कंपटीशन, और या उसको पैर जमाने में काफी टाइम लगेगा? इसके बारे में बताइए। नहीं नहीं जमा पाएगा, नहीं जमा पाएगा। हाँ बिकॉज ये इसमें क्या है सर कि हर एक टेंडर में एक ग्रेडेशन रहता है, क्वालिफिकेशन मार्क रहते हैं, हाँ बिल्कुल। फाइनेंशियली एंड टेक्निकली. हाँ ओके। फाइनेंशियली मे बी ही इज कैपेबल, हाँ बट टेक्निकली सपोज उसने 50 करोड़ का काम है तो 40 करोड़ का 80% का एक काम सिंगल प्रोजेक्ट में किया होना चाहिए, हाँ या तो 50% के दो काम कंप्लीट किए हुए हैं और हाँ 1 साल से चलते होने चाहिए, या 40% के 3 प्रोजेक्ट. सो दीज आर द क्राइटेरियाज. ओके प्लस we are qualified in high tension also, ओके whereas very few bidders are qualified in high tension projects. They are only in low tension. ओके। So there also we are having head start compared to our ठीक है, competitors. समझ गया। आई थिंक वेरी नाइसली मेंशन्ड बाय यू दीपक जी। सर अभी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। मैं देख रहा था सर FY24 में तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ गया है, 6 करोड़, जो प्रीवियस ईयर 2.58 करोड़ था। रेवेन्यू भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है, ऑलमोस्ट 101 करोड़। सर फर्स्ट हाफ में भी वी हैव डन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, 75 करोड़ पे मेरे ख्याल से कुछ 5.28 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो मेरे को सर सिंपल बात बताइए, पिछले साल रेवेन्यू बढ़ने का कारण क्या था? कि ऑर्डर बुक अच्छा था प्लस प्रॉफिट भी अच्छे बढ़े हैं, तो वेदर प्राइसिंग ऑल्सो यू गॉट द बेनिफिट ऑफ बेटर प्राइसिंग? सर मोटा मोटी दोनों चीजें काम में आ गई, वॉल्यूम भी बढ़ गया, प्राइसिंग भी अच्छा हो गया। तो सर अभी जैसे कि अभी ऑलरेडी FY25 खत्म होने को आ रहा है, मार्च अभी बहुत नजदीक है। सर विदाउट गिविंग नंबर नंबर मत दीजिए, लेकिन मेरे को बताइए कि सर ये साल दैट इज FY25 पिछले साल के हिसाब से कैसा लग रहा है? विल इट बी मच बेटर देन FY24? Will be better. और सर एंड आपको हमारे रीजन numbers चाहिए आपको सर, कैसे मिल रहे हैं? रीजन लाइक चाहिए सर. कस्टमर्स की साइड से आपको क्या सिग्नल मिल रहा है कि कस्टमर्स क्या कह रहे हैं ऑन द ग्राउंड? आपको क्या फील मिल रहा है? सर मार्केट इज अनलिमिटेड फॉर. एंड दूसरा क्या है सर, वी हैव वेंचर्ड इनटू न्यू एवेन्यू आल्सो, ओके which we have not yet told you. That is electrification. ओके That electrification we have entered into that segment where we are working with banking sector and with in very good way with Western Railway, ओके not Western Railway, Indian Railway. ओके ओके। तो ये भी So बिजनेस स्केलेबल हो सकता है अगले साल हाँ दो हाँ साल? हाँ yes, हाँ because हाँ in as of now, railway is going at great length. Gauge conversion is there, doubling of broad gauge is there, electrification is also there, uh, and dedicated freight corridor is there also we are working. Plus railway is going with some innovative ideas. There also we have entered. ओके Suppose a train is reaching at platform number 1. So automatically the moment train reaches, all the washrooms will be filled up with water through automation. ओके ओके So that automation will reduce the filling of water by another 3 to 4 minutes. ओके So per station. So if Ahmedabad to Delhi is there, so they will save around 30 to 40 minutes. ओके ओके So that is one big area where we are working. It ओके is called quick watering system. ओके ओके Another is saving of energy. That is the moment train reaches on platform number 1, that public announcement system will be there. That train Vande Bharat is reaching on platform number 1. So that announcement will automatically switch on 100% light of platform ओके number 1. ओके The moment Vande Bharat left the platform number 1, it will scale Reduce. down to 50% or 70% or 60%, whatever that railway has decided. ओके
So So basically there also we are, projects where company is working, यानी ये भी projects पे company काम कर रही है, आप बता रहे हैं। yes, that we have started, and since last 3 years we are working in these projects. सर मोटा मोटी अगर मैं पूछूं कि सर अगले एक या 2 साल में कैन वी एज्यूम दैट रेलवेज विल बिकम अ बिग कस्टमर फॉर अस? Yes, yes, हो जाएगा। because new routes are also coming up. Their HT line and HT installation is very big business, ओके and there we are going to enter into HT business now ओके with railway. As of now, we are in HT business with water supply, and Only. now we are entering into railway also. I think बढ़िया, very nice to hear. Sir, now most important question, दीपक जी, company is making public issue. So sir, public issue के बारे में कुछ बताइए कि what is the amount of money which we plan to raise from the capital market? कितना पैसा हम बाजार से उठाने वाले हैं? और what is the main objective? How are we going to use this money? ये पैसा हम कहाँ पे खर्चा करेंगे? यस, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सर। उसमें क्या है कि अभी हम 27 से 30 करोड़ जो भी फाइनल फिगर होगी, वो हिसाब से हम उसका आईपीओ ला रहे हैं। हाँ, उसमें हमारा क्या है कि सर, जो गवर्नमेंट में हम काम कर रहे हैं ना, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, पैसा ब्लॉक हो रहा है, वो सिक्योर डिपॉजिट में हो रहा है। हाँ, द मोमेंट वी गेट द ऑर्डर, सपोज मुझे 10 लाख का ऑर्डर मिला है, तो मुझे 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। तो 50 लाख रुपया मेरा जाएगा एग्रीमेंट के टाइम पे। 50 लाख रुपया मेरे हर एक बिल में से कटेगा, हर एक आरे बिल में से कटेगा। वो नहीं काटने के लिए उसको भी सिक्योरिटी कुछ देंगे आप। और 50 लाख रुपया, थर्ड 50 lakhs विल बी एज डिफेक्ट लाइबिलिटी। करेक्ट। So this 50 lakhs is comes to 1.5 CR. I am taking example of 10 crore orders. Correct. So this gets lot of money. It is getting blocked. Okay. Secondly, our capital equipments are like transformer, flow meters, pumps, motors, pipelines. So all these are cash and carry items. Correct. So the moment I give order to, suppose say Welspun or Ratnamani for Yeah. pipe, say 5 crores का order दिया, तो I have to give 50 crores as an advance, 50 Correct. lakhs as an advance, बरोबर. and balance 4.5 CR with taxes at the time of dispatch. Okay. And against that, I will get only 70% Okay. from department. Okay. ठीक है, समझ गया. After I install and commission, I will get another 20%. Okay, समझ गया. 3 months of trial run, I will get another 5%. So this gets money gets blocked. So Okay. this money we will use in our new projects, and now we are getting qualified in 100 crores project also. So Okay. that this money we are going to use in that bigger project also. मैं समझ गया. तो बेसिकली थोड़ा सा ग्रोथ कैपिटल के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लगेगा. Working capital, yes. ठीक है. हाँ सर प्लीज, आज हमारा कंपनी का जो भी सिस्टम पूरा है और हमारी कैपेसिटी और जो नॉलेज है, इसके लिए हम 100 करोड़ का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 करोड़ का टेंडर में इन केस हम सक्सेस हो गए, तो उसका 10 करोड़ हमें चाहिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो नहीं है, इसलिए हम बीड नहीं कर पाते। कैपेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीड नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया. सर अभी बताइए, नॉर्मली अभी जब वर्किंग कैपिटल की बात हुई है, तो दीपक जी आप बताइए, नॉर्मली जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, ये माइलस्टोन बेस्ड पैसा मिलता है, जितना काम किया उसके हिसाब से आपका पैसा आपको कस्टमर देता है? तो हाउ डज द वर्किंग कैपिटल साइकिल वर्क? मोटा मोटी ऑर्डर मिलने के बाद एग्जीक्यूशन जब आप करते हो, तो एग्जीक्यूशन टप्पे टप्पे में थोड़ा थोड़ा होता है, तो उसके हिसाब से आपको पैसा कस्टमर से मिलता है? यस, सपोज मुझे 20 किलोमीटर का पाइपलाइन डालना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 या 10 किलोमीटर पाइपलाइन लाऊंगा, मेरे फाइनेंशियल जो भी मेरा अवेलेबल है उसके हिसाब से. हाँ. वो हिसाब से मैं लाके पाइपलाइन रख दूंगा. आई विल टेक पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट. ओके. Still there will be some shortfall because I am going to get 70 or 75% only. बरोबर बरोबर. So then another batch will be ordered to this pipe manufacturer. बिल्कुल That way बिल्कुल. we are rotating our facility. दीपक जी मेरे को बताइए, मोटा मोटी क्या हम मान के चले कि कम से कम 60 डेज या 90 डेज का नॉर्मल टाइमलाइन होता है कि भाई आपको आपका वर्किंग कैपिटल, एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल बैठता है, ये मान के चलना ठीक रहेगा?
30 to 75 पकड़ के चल सकते हैं सर आप। चले, ठीक ठीक। सर अभी आखिरी सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट है सर, हमने कोविड देखा है, अभी तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। सर मेरे को बताइए हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? हम गवर्नमेंट का ज्यादातर काम करते हैं और काफी क्रिटिकल कंपोनेंट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो व्हाट इज द मेन रिस्क हमारे धंधे में? सबसे बड़ा रिस्क है, आप ये धंधे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो सर इसमें एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट? जो आपने बोला हम सबसे अच्छे वेंडर से काम करते हैं, या कुछ खराबी हो गई, मान के चलिए कोई मैल्फंक्शन हो गया, तो ऐसा क्या रिस्क है जो हमारे धंधे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क माना जाता है और आपने उसको कैसे कंट्रोल किया है? First is raw material. In our electromechanical project, three major metal is being used: mild steel, aluminum, and copper. हाँ, So these three items are governed by world market. करेक्ट। But luckily, since last 4-5 years, there is no such jump in these metal, base metal. हाँ, So that is one risk is there. If something happens, big war comes out in world, so we don't know about that. That is one risk. वॉर अगर आ जाता है तो सरकार भी अपने पैसे थोड़े पकड़ पकड़ के छोड़ती है, इजीली पेमेंट बिल्कुल नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो एक रिस्क है, मेटल के प्राइस राइज का एक रिस्क रहता है हमको, बिल्कुल क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटा मोटी यही मैं मान के चलूं कि सर आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी मोटा मोटी आपको थोड़ा सा वो प्राइस फैक्टर इन करके ही फिर टेंडर में कोट करके आपको प्राइस लगाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर मटेरियल रिस्क थोड़ा यही एक सा रिस्क है। डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ गया तो फिर तकलीफ हो सकती है, अदरवाइज रनवे काफी बड़ा है। ठीक है ना? यस। सर लेकिन हमारा दूसरा क्या है, पाइप में एक दो बाकी के मटेरियल, पाइप एक मेजर आइटम होती है जब आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब। लेकिन उसमें एक रेट हमें ऐसा भी मिल जाता है कि फिक्स रेट, ये प्रोजेक्ट इन टाइम खत्म होते हैं तब तक उसका रेट फिक्स ही रहेगा, उसे मार्केट रिलेटेड नहीं है, ऐसा एक रेट मिलता है। तो कभी हम हाँ, रिस्क नहीं लेते हैं, वही रेट लेके डाल देते हैं। अच्छा, 1% हम कम प्रॉफिट रखते हैं, लेकिन विदाउट रिस्क हम डाल देते हैं बड़े टेंडरों को। ओके ओके, नहीं ठीक है, समझ तो गया। फिक्स रेट मिल जाता है हमें। ओके, नहीं नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करने के बाद। अच्छा, कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने दी, तो महेंद्र जी और दीपक जी बहुत अच्छा लगा। मेरे तरफ से सर बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपको, आपके पूरे मैनेजमेंट टीम को, और सर थैंक यू सर, पब्लिक थैंक यू इशू के सर। लिए भी बहुत बेस्ट विशेस। मैं आशा करता हूँ सर बहुत अच्छी तरह से पब्लिक इशू आपका सक्सेसफुल हो। थैंक यू। सर बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। We are also fortunate to have this discussion with very great knowledgeable people like you in this finance field, sir. नहीं नहीं सर, We are बहुत also अच्छा very लगा। much happy. ठीक है सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you very much.